Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today was first day of examination for SBI Junior Associate this year examination, and this passed peacefully because in all the 4 shifts the candidates could perform very well. If we look at the comments on all the 4 videos that I have placed, I have observed that most candidates have performed very well in the today examination. And as far as level is concerned, if we go through the comments, it seems the candidates are satisfied with the level of the examination. And this is a matter of satisfaction that candidates have performed very well and they will get chance to go to the next phase. This year, if we look at the overall scenario, as overall number of vacancies are higher, naturally more candidates will be called for mains. So the probability of candidate going to main is also high. Some people may like to predict the cutoff, but we have stopped prediction of cutoff for last 4-5 years. And you must have observed that whatever cutoff predictions are done, very rarely real cutoff is near to that. And that's why now cutoff prediction game has become a meaningless game and we are not wasting our energies in that. Rather, what should be done in coming days, that is important. You have performed well. Even if you have not performed well, still this safest option is prepare for mains. Because after every exam, many candidates ask me, sir, should I prepare for main? My answer is always prepare for mains. And every year some miracle happens. The candidates, those were not expecting that they will move to the main, they move to the main. And some people, those were optimistic, they miss the bus. So it has become an impossible game or a very difficult game to predict the cutoffs. Under such circumstances, when the competition is too much, but this year vacancies are also high and the probability of moving to the mains is high, so there is no harm in starting our preparation. So in the earlier video also I have hinted that the candidates, those have done with their examination today, they should cover the current affair in today and tomorrow, because they have stopped reading the current affair for last 7 days. So now they should cover the current affair so that they can start their mains preparation from day after tomorrow. From 25th onwards, we will be starting our preparation for main examination, and I will be posting one video tomorrow evening to give you timetable for mains. So the candidates of 22nd, that is today, will start their preparation for mains. The other candidates will continue to focus only on pre. If your exam is on 27th, 28th or 1st, please focus only on pre because due to large number of vacancies and due to large number of candidates, the pre-level cutoffs may be very different than what you are thinking. So don't take the pre-examination casually. Focus on pre first and then immediately after your examination of pre, move to main examination preparation. That is the only thing that I want to say. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज पहला दिन था एग्ज़ाम का और चारों शिफ्ट ख़त्म हो गई और काफ़ी शांतिपूर्वक ये चारों शिफ्ट ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई भी शिफ्ट में ऐसे कमेंट पढ़ने को नहीं मिला जिसमें कोई निराशा कैंडिडेट्स को हुई हो. सभी कैंडिडेट्स के अच्छे अटेम्प्ट्स देखने में मिले विद फ्यू एक्सेप्शंस, और मोर और लेस कैंडिडेट सेटिस्फाइड लगे अपने अटेम्प्ट से, क्योंकि जितनी तैयारी करी है उस हिसाब से यदि पेपर आ गया है और आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो ये एक आत्मसंतोष की बात होती है.
बाकी नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो एक मिस्ट्री है और वो बनी रहेगी। मगर इस बार एक आपको फ़ायदा है क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा कैंडिडेट आगे जाएंगे, ज़्यादा कैंडिडेट आगे आएंगे तो इसका मतलब है आपका आगे जाने का स्कोप काफ़ी अच्छा है। और इसी पॉजिटिव माइंड के साथ इमीडिएटली आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आपके जितने मर्जी अटैम्प्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर कट ऑफ प्रेडिक्शन करिए। हमने 4-5 साल से कट ऑफ प्रेडिक्शन बंद कर दी है और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से जो भी प्रेडिक्शन की जा रही हैं और जो वास्तविक कट ऑफ आ रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, लाखों की तादाद में कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल खेल हो चुका है ये कि जिसके अंदर कोई प्रेडिक्शन की जाए। और प्रेडिक्शन करके कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा मानना ये है कि अगर आपने प्री दिया है तो मेन की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। बिल्कुल भी निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, मेन की आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आज मैंने दोपहर के वीडियो में भी आपको बताया कि जिनका आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आज और कल के अंदर वो अपनी करंट अफेयर जो उनका बैकलॉग है उसको पूरा कर लें। और आज 22 है, 22, 23, 24 तारीख से या 25 तारीख से अपनी मेन की पूरी तैयारी आप शुरू कर लें। कल रात तक मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा मेंस का टाइम टेबल। तो जो 22 वाले कैंडिडेट हैं वो मेन की अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। जहां तक बाकी कैंडिडेट जिनका अभी एग्ज़ाम होना है 27 को, 28 को और 1 को, उनको सारा का सारा फोकस प्री पर ही रखना चाहिए। जैसा आज भी आपने देखा होगा कि आज काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं लोगों के और हमें उम्मीद करनी चाहिए बाकी 3 दिन भी पेपर इसी लेवल के आने चाहिए और उसमें भी अटैम्प्ट्स लोगों के अच्छे होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है एग्ज़ाम को। कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो सोचने लगते हैं हर साल निकल जाता है प्री, तो किसी साल में कैजुअल हो जाते हैं और फिर वो प्री में ही अटक जाते हैं। प्री को पूरी अटेंशन देंगे आप, अभी प्री का ही खेल है और जैसे ही प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो एकदम आप मेंस के ऊपर आ जाएंगे। इस चीज़ की चिंता मत करें कि जिनका आज एग्ज़ाम हो गया उनको एक हफ़्ता फालतू मिल गया। उन्होंने पिछले हफ्ते से करंट अफेयर भी छोड़ी हुई है, आपने अप टू डेट करंट अफेयर की हुई है, इसलिए सब बराबर ही हैं। किसी ने पहले करंट अफेयर कवर कर लिया, कोई बाद में कर लेगा, तो इस तरह की टेंशन मत रखिए। जिनका एग्ज़ाम अभी प्री का होना है उनको सारी की सारी फोकस प्री पे लगानी चाहिए, क्योंकि अगर प्री लेवल पे अटक गए तो मेन का मौका मिलेगा ही नहीं अगर आप मेन की तैयारी अभी साथ साथ कर रहे हो। मेन की तैयारी आप शुरू करेंगे जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते से भी कम की बात है, 1 तारीख तक सबके ही प्री ख़त्म हो जाएंगे। किसी का 27 को है, किसी का 28 को है, किसी का 1 को है, तो अभी उसी पे फोकस रखें, ये मेरी सलाह है। और कट ऑफ प्रेडिक्शन हम करते नहीं है, कट ऑफ में कुछ प्रेडिक्ट करूँगा नहीं, मगर जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है उन सभी को करंट अफेयर की पढ़ाई करनी चाहिए आज और कल, और परसों से या उससे अगले दिन से पूरी शिद्दत के साथ मेन के मॉक टेस्ट के साथ तैयारी मेंस की आप शुरू कर देंगे। कल रात को मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा अगले 3 दिन का, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना शुरू करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पेपर आज अच्छा गया है लोगों का, इसको भी देखकर मुझे काफ़ी खुशी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।